چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی مشکلات کم نہیں ہوئی۔ خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ ایف آئی آر کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے دفعہ 5 اور 9 کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ان کے خلاف کافی مجرمانہ مواد موجود ہے۔ تحریک انصاف نے فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ سائفر کیس میں خصوصی عدالت نے اسد عمر کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی درخواست سے ضمانت مسترد۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس بات سے نظر نہیں پھیرنی چاہیے کہ یہ ایک ٹاپ سیکرٹ کیس ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی مقدمے میں ایک کردار کے تحت نامزد ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کافی مجرمانہ مواد موجود ہے۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ ایف آئی آر کی روشنی میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے دفعہ 5 اور 9 کے تحت ناقابل ضمانت جرم کا ارتکاب کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کی جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کے وکیل نعیم حیدر منجوتا نے فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ جنہوں نے کیس بنایا وہ ثابت کرنے میں ناکام ہو گئے، بغیر کسی وجہ کی ضمانت خارج کی گئی۔ انصاف کا دورہ معیار کسی صورت قبول نہیں۔ کیس کیونکہ انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے ثابت کرنا تھا، لیکن وہ ناکام رہی۔ بلا وجہ نہ جانے کیوں خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ آج خارج کر دی گئی۔ اس کو ہم کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے۔ گور صاحب نے آپ کو بتایا دورہ معیار انصاف کا کسی قدر قبول نہیں ہے۔ اس سے قبل آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر کیس کی سماعت ہوئی، جس میں تحریک انصاف کے سربراہ اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء نے دلائل دیے۔ ایف آئی اے کے پراسیکیوٹر نے اپنے دلائل سے قبل سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست کی۔ عدالت نے درخواست ضمانت پر بقیہ سماعت ان کیمرہ ڈکلیئر کرتے ہوئے غیر متعلقہ افراد، وکلاء اور صحافیوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا۔ سائفر کیس میں ہی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے اسد عمر کی درخواست سے ضمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اسد عمر کو 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ پیپلز پارٹی کے لاہور میں سر جوڑ کر بیٹھ کے بڑے بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کی زیر صدارت اسپیشل سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ صدر کے الیکشن کمیشن کو خط کے معاملے پر غور کیا گیا۔ انتخابات 90 روز سے آگے لے جانے پر بھی بحث ہوئی۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں صدر کے پاس الیکشن کی تاریخ دینے کا کوئی اختیار نہیں، الیکشن کا اعلان کوئی بھی کرے، انتخابات جلد ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن پورے ملک میں ایک روز ہونا چاہیے۔ صدر واضح موقف نہیں رکھتے، وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہیں۔ پارٹی کا فیصلہ ہوگا کہ کس سطح پر نون لیگ سے ڈیل کرنی ہے۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ لطیف کھوسہ کو نوٹس جاری ہوا ہے، ان کو میٹنگ میں شرکت کی دعوت تھی۔ اب الیکشن کے اس موضوع کے اندر ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی بھی ایک کوشش سامنے آئی ہے، جو کہ صدر کا لیٹر آیا ہے اور پھر اس کے بعد مختلف آراء آئی ہیں۔ اب تو یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ وہ خط صحیح تھا یا غلط تھا۔ جس شخص نے وہ خط لکھا، کیا اس کے پاس اختیار ہے ڈیٹ کو اناؤنس کرنے کا یا نہیں ہے؟ یا تو بات اس طرف کی ہو یا اس طرف۔ یہ جو بیچ کی گیم کھیلتے ہیں نا صدر پاکستان عارف الوی صاحب، وہ بڑی عجیب ہوتی ہے کہ وہ نہ ادھر کی نہ ادھر کی، ایسے بات نہیں ہوتی۔ بات ہوتی ہے مکمل یا آئینی تقاضوں پہ یا قانونی تقاضوں پہ۔ الیکشن کی ڈیٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینی ہے، اور آج اگر کوئی اس پہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرے بھی تو ہمیں اس کو یہ جواب ضرور دینا میرا فرض ہے کہ جی ڈیٹ کون اناؤنس کرتا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بحث نہیں ہے۔ ہماری بحث اس وقت ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو، یہ غیر یقینی کی صورتحال اس سے ملک نکل سکے۔ بالکل جی، لطیف کھوسہ صاحب کو آج ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب نے نوٹس دیا ہے، جس پہ انہوں نے 7 دن میں رپلائی کرنا ہے۔ آج کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ فیئر ویل ہو رہے ہیں، دونوں ہمارے وکلاء صاحبان اس وقت اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں کہ عوام نواز شریف کو 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ دیں، وعدہ ہے معاشی بدحالی، مہنگائی، بے روزگاری کے سیاہ اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ عوام چال بازوں، فراڈیوں، جھوٹوں اور توشہ چوروں کے پروپیگنڈے سے ہوشیار رہیں۔ مریم نواز نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اپنے ریلیف کے لیے نہیں، قوم کو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی بدحالی اور لاقانونیت کی تکلیف سے نجات دلانے آ رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عوام کے معاشی دکھ درد دور کریں گے، مہنگی بجلی کے بلوں سے نجات دلائیں گے۔ قائد نون لیگ محمد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی تیاریاں۔ لاہور میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس، پارٹی رہنماؤں، سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کی شرکت۔ اجلاس سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کا بیٹا قوم اور وطن کو مشکلات سے نکالنے میں تاریخی کردار ادا کرنے آ رہا ہے۔ نواز شریف ایک بار پھر قوم اور ملک کو ان بحرانوں سے نکالیں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ محمد نواز شریف کو ہمیشہ بحرانوں، طوفانوں
और खसारों में घिरा मुल्क मिला। आज मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, माशी तरक्की और महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज्यादा मैंडेट दें। वादा है माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के सया अंधेरे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। इजलास में 21 अक्टूबर को पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख के ऐलान का खैर मकदम किया गया। पार्टी रहनुमाओं ने इस मौके को तारीखी बनाने और तैयारियों के हवाले से अपनी तजावीज़ और आरा पेश की। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए सियासी राबते तेज। MQM, JUI, GDA पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुत्तहिद हो गए। JUI के वफ्द की MQM के रहनुमाओं से मुलाकात। डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं अब देही सिंध के अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि उनके पास कोई सियासी मुतबादिल नहीं। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि कराची से कश्मीर तक सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। MQM पाकिस्तान, JUI और GDA पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक हो गयी। MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं की बहादुराबाद मरकज पर मुलाकात। GDA के साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने पर इत्तेफाक। फारूक सत्तार बोले कि अब सिंध कार्ड नहीं चलेगा। हमने ये तय किया है कि अब ये सिंध कार्ड हम नहीं चलने देंगे। इसकी बुनियाद पर अब मासूम अवाम को इस गलत फहमी में नहीं रहने देंगे कि सिंध में और ख़ास तौर पे दही सिंध में कोई मुतबादिल क़यादत नहीं है। JUI के रहनुमा मौलाना राशिद महमूद सोमरो का कहना था कराची से कश्मीर तक सिंध के अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग पर इलेक्शन कमीशन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करे। इलेक्शन कमीशन इन तमाम जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करे, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स के हवाले से हो, चाहे वो हल्का बंदियों के हवाले से हो, चाहे वो ROs और DROs के तकर्रुर के हवाले से हो, चाहे वो दीगर इलेक्शनी उमूर के हवाले से हो। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। कैमरामैन फैजान अली के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। वर्ल्ड माफिया के खिलाफ इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का क्रैकडाउन। कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुश्तमिल टास्क फोर्स बनाकर माफिया और स्मगलर्स की लिस्टें तैयार कर ली गई। एजाज साहब बताइएगा कौन कौन शामिल है इस लिस्ट में? जी, जो ताज़ा इत्तलात मौसूल हुई उनमें ये बताया गया है कि कानून नाफिज करने वाले अदारों, एजेंसीज और जो मुतालिका अदारे हैं उन्होंने अब गोल्ड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है और इस हवाले से इब्तदाई तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गोल्ड के कारोबार और गोल्ड डीलिंग में मौजूद माफिया और जो स्मगलर्स हैं उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और ये भी फैसला कर लिया गया है कि गोल्ड के कारोबार को मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज किया जाएगा और उसको सरकारी नेट पे लाया जाएगा ताकि गोल्ड की तिजारत से जो होने वाले नुकसान है जो माफिया की वजह से, स्मगलिंग की वजह से होते हैं, उन पर काबू पाया जा सके और कौमी आमदनी को बढ़ाया जा सके। तमाम फहरिस्तें तैयार करके मुतालिका महकमों को भेज दी गई और जल्द इस हवाले से पकड़ धक्का भी शुरू की गई कर दी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया एजाज साहब। PTI पार्लियामेंटेरियन के रहनुमा परवेज खटक कहते हैं कि चेयरमैन PTI 3.5 साल झूठ बोलता रहा, फिर 16 महीने मुल्क को चोरों के हाथों में दे दिया। चोरों के टोले ने मुल्क को खूब लूटा। मैंने मदारियों को करीब से देखा है। डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अगर हम झूठे हैं तो हमारा साथ मत दें, लेकिन इन चोरों को वोट भी मत दें। 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन मैंने देखा कि 3.5 साल में ना रिफॉर्म्स हुए, ना तालीम बेहतर हुई, ना सेहत का निजाम ठीक हुआ, ना रिश्वत पे हाथ डाला। अगर इस मुल्क में आप इन्हीं लोगों को लाते रहे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, जिन्होंने इस मुल्क को कर्जदार किया, जिन्होंने इस मुल्क को बेरोजगार किया, क्या हम इन लोगों के पीछे जाएंगे? मैंने इन मदारियों को देखा, इनके तमाशे देखे, मुझे उम्मीद भी बहुत थी कि इमरान आएगा तो खुशहाली आएगी, लेकिन ना खुशहाली आई, ना इंसाफ आया। आप लोग वोट बगैर सोचे समझे देते हैं, किसी का माजी नहीं देखते, उसका किरदार नहीं देखते, सिर्फ अपने ताल्लुक की वजह से वोट देते हैं। इसी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ पूरे मुल्क में ऑपरेशन जारी है। 95 करोड़ से जायद की रिकवरियां, 490 चोर गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में बिजली चोरों और कुंडे माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। अजीजुर रहमान चंद का चंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लेस्को का नादहिंदा निकला। गुलजार कॉलोनी फैसलाबाद में बिजली चोरी पकड़ने वाली फेस्को टीम पर फायरिंग, अमला बाल बाल बच गया।
मुल्क भर में बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ रीजन में सैकड़ों कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए, गिरफ्तारियां, मुकदमे दर्ज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि बिजली चोरों से 95 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। अब तक 490 बिजली चोर गिरफ्तार और 4241 पर मुकदमे दर्ज किए गए। आईएसको ने इस्लामाबाद समेत तमाम सर्कल में मजीद 68 बिजली चोर धर लिए। बिजली के मीटर उतार कर चोरों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक अजीजुर रहमान चंद का चंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लेस्को का 51 करोड़ 53 लाख रुपए का नादहिंदा निकला। दुराने ऑपरेशन प्रॉपर्टी 1 होने पर तीसरा रनिंग कनेक्शन इकरा कोल्ड स्टोरेज भी काट दिया गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक पेशावर में 2 मेडिकल प्लाजों, 8 बंगलों और 2 मोबाइल कंपनीज के टावर्स में बिजली चोरी पकड़ी गई। 10 कमर्शियल दुकानें और मुतादिद घर भी बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। तमाम बिजली चोरों के खिलाफ FIRs दर्ज कर ली गई हैं। फैसलाबाद गुलजार कॉलोनी में बिजली चोरी पकड़ने वाली फेस्को टीम पर मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी गई। फेस्को टास्क फोर्स टीम बाल बाल बच गई। पुलिस वाक़ये की तहकीकात में मसरूफ है। फैसलाबाद में 136 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुल्तान समेत 13 अजला में एक हफ्ते के दौरान 28 बिजली चोर गिरफ्तार हुए। मेपको ने बिजली चोरों को 14 करोड़ 26 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। गेपको ने भी गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 9 बिजली चोर पकड़ लिए। मुल्क में आम इंतखाबात, आइन की बालादस्ती और महंगाई के खिलाफ वकला तंजीमों का एहतजाज। लाहौर, गुजरांवाला, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में वकला ने अदालती बाइकआउट किया। पेशावर में वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने खैबर रोड पर एहतजाजी कैंप लगाया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आम इंतखाबात का मुतालबा लिए वकला सरापा एहतजाज बन गए। आइन की बालादस्ती, करप्शन खत्म करने और महंगाई में कमी का मुतालबा भी कर डाला। लाहौर में वकला ने आइन और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए GPO चौक से माल रोड तक रैली निकाली। वकला की बड़ी तादाद ने निगरान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि निगरान हुकूमत बनने के बाद महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और महंगाई में कमी ना की तो वकला तहरीक चलाएंगे। कोयटा में भी महंगाई और करप्शन के खिलाफ बलोचिस्तान बार काउंसिल की अपील पर वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला रहनुमाओं ने कहा कि मुल्क में इलेक्शन में ताखीर कबूल नहीं, महंगाई और करप्शन को भी खत्म किया जाए। पेशावर में भी वकला ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने खैबर रोड पर एहतजाजी कैंप लगाया और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया। सदर पेशावर बार अशफाक खलील ने कहा कि बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी कमी की जाए। ताजिर बरादरी और दीगर शोबों से बात करके आइंदा हफ्ते से एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले किए गए। सोशल मीडिया के जरिए रियासत के खिलाफ नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम उठाने और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ज्वाइंट चेक पोस्ट के कयाम समेत बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। शाहिद जान की रिपोर्ट। निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात, सूबाई वज़रात समेत सिविल व अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास में दहशतगर्दी में मुआविन साबित होने वाली गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम, सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने वालों के खिलाफ इक़दाम उठाने, गैर कानूनी मोबाइल सिमों, असलहा बदतखूरी, हवाला हुंडी, करेंसी मंशियात स्मगलिंग और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया। इजलास में सूबे में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों का डेटा इकट्ठा करने, इंसिफी गाड़ियों और मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मामलात का तफसीली जायजा लेने और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुआवनत फराहम करने वाले सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी फैसला किया गया। इजलास में बदतखूरी में मुलव्विस अनासर से आहिनी हाथों से निमटने के लिए CTD का खुसूसी यूनिट कायम करने का फैसला किया गया। शुरुका ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए विफाकी और सूबाई इदारों की तरफ से मरबूत इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। शाहिद जान, GNN, पेशावर। अहम खबर FIA लाहौर जोन की कार्रवाई, हवाला हुंडी में मुलव्विस मुलजिम शहजाद अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। 3.5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। इसी हवाले से बात करेंगे सरफराज अहमद से। सरफराज, कार्रवाई का अहवाल बताइए। देखें, FIA की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त और हुंडी हवाला माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और डायरेक्टर FIA लाहौर जोन की हिदायत पर रेड करके गैर कानूनी कारोबार, हुंडी हवाला और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस मुलजिम शहजाद अहमद को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और FIA के मुताबिक मुलजिम के कब्जे से 3.5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद की गई है और मुलजिम शहजाद अहमद हवाला हुंडी और मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त से मुल्की मईशत को भारी नुकसान जो है वो पहुंचा रहा था और FIA का ये कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात भी उससे की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।